Hello students, welcome back to our channel. As you all know, we have completed 5 parts of the chapter Era of One Party Dominance, and today we are going to do 6 parts of the same chapter. Till now we are able to get mostly all of the things related to the chapter. We have understood that which situation is considered as the era of one party dominance. We have also considered that there were other parties also which were trying to get, you can say, power and politics. But even then, due to the popularity, due to the legacy of Congress, they were not able to do so. We have understood Communist Party also, partition of that particular Communist Party, and today, what we are going to study, we will study today Bharatiya Jan Sangh, or you can say that the origin point of Bharatiya Janata Party. जो भारतीय जनता पार्टी है वो भारतीय जनसंघ से ही emerge हुई है. So today we are going to discuss about Bharatiya Jan Sangh. Let us discuss it today. The Bharatiya Jan Sangh was formed in 1951 with Shyama Prasad Mukherjee as its founder president. So what you will have to keep in mind that it was formed in 1951, and who was the founder president? Shyama Prasad Mukherjee. After that, its lineage, however, can be traced back to the Rashtriya Swayamsevak Sangh RSS. I think आप लोगों ने नेम कई बार सुना होगा RSS, कि वो पर्टिकुलर पर्सन ना RSS के फॉलोवर है, RSS के मेंबर है ना. तो कहीं ना कहीं अगर आप कंसीडर करते हो ना भारतीय जनता पार्टी, तो कहां से निकली है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकली है. गॉट इट? एंड द हिंदू महासभा बिफोर इंडिपेंडेंस, और किससे? जो हमारी इंडिपेंडेंस से पहले हिंदू महासभा बनी थी, उससे ओरिजिन है भारतीय जनसंघ. गॉट इट? हालांकि भारतीय जनसंघ फॉर्म हुई 1951 में, बट उसके जो सीड्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको कहां मिलते हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में या फिर हिंदू महासभा में. एंड दे वर ऑल्सो एग्जिस्टिंग बिफोर इंडिपेंडेंस ऑल्सो. So the Jansangh was different from other parties in term of ideology and progress. अब देखो, जब एक वन पार्टी डोमिनेंस एरा कंट्री में स्टैब्लिश हो चुका है, एंड इफ यू वांट टू एस्टैब्लिश your rule, if you want to attack the people, so you will have to show some extra thing, some different thing from that particular party. We have understood and we have discussed yesterday that opposition party, they were not able to get the support of the people because whatever they were trying to say, already it was included in the policy of the Congress. That's why it was considered as the party of inclusion also, rainbow organization also. But Jansangh was different. Now we are going to study in which manner it was different. So in the term of ideology and programs, it was different. मतलब जो इसकी आइडियोलॉजी थी वो भी डिफरेंट थी, और इसके जो प्रोग्राम्स थे दे वर ऑल्सो डिफरेंट. इट एम्फेसाइज द आइडिया ऑफ वन कंट्री, वन कल्चर एंड वन नेशन. अब देखो, इसका जो बेसिक आइडिया वो क्या है? एक कंट्री होगी, उसका कल्चर भी एक ही होगा और हमारा एक नेशन होगा. राइट? अब देखो, एंड बिलीव्ड. अब देखो, कंट्री नेशन, कंट्री और नेशन में भी डिफरेंस होता है ना. अगर आप लोगों को, और एक वर्ड होता है स्टेट, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट. राइट? सो अब देखो, कंट्री नेशन, नेशन कंट्री का मतलब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ एनी एरिया. सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, सो हम क्या बोलते हैं? गिव मी पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, है ना. तो हम क्या इंडिया कंट्री का मैप मांग रहे हैं, बिकॉज दैट इज शोइंग आवर बाउंड्रीज बेसिकली. राइट? लेकिन नेशन कब बनता है? नेशन बनता है जब उस पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर जो पीपल रह रहे हैं, दे आर हैविंग अ फीलिंग ऑफ लव, अफेक्शन एंड यूनिटी. तब बनता है नेशन. यानी नेशन कहीं ना कहीं इट इज रिलेटेड टू द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल, फीलिंग्स ऑफ द पीपल. इसलिए अगर नेशन से कनेक्टेड कोई आपकी आइडियोलॉजीज को कंसिडर करते हैं नेशनलिज्म. राइट? कंट्रीज्म आपने नहीं सुना होगा, है ना. सो व्हाई? बिकॉज नेशन इज समथिंग रिलेटेड टू द फीलिंग्स एंड सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल. Right? So what was its basic idea? One country, one culture and one nation, and believed that the country could become modern, progressive and strong on the basis of Indian culture and tradition. अब इनका जो फोकस्ड एरिया था, what was that? कि अगर हमारी कंट्री को डेवलप होना है ना, तो किस बेस पे होगी? सिर्फ हमारे कल्चर के बेसिस पे या फिर ट्रेडिशन के बेसिस पे. And the party was called a reunion
the party called for a reunion of India and Pakistan in अखंड भारत। और इन्होंने क्या आइडिया दिया, that there should be a reunion of India and Pakistan and there should be the formation of अखंड भारत, मतलब एक ऐसा भारत जिसके पार्ट्स ना हो। The party was in forefront of the agitation to replace English with Hindi as the official language of India and was also opposed to the granting of concession to religious and cultural minority. अब देखो डिफरेंट, आपने पढ़ा कि it was different from other parties in its ideology. So what was its ideology? कि एक तो इसने फोर फ्रंट पे वर्क किया किसके रिगार्डिंग, कि हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ इंग्लिश, है ना। आज भी कहीं ना कहीं आप, क्योंकि बीजेपी के रूट्स ना भारतीय जनसंघ से ही, तो आज भी जब आप बीजेपी की आइडियोलॉजी देखते हो दैट इज रिलेटेड टू समथिंग हिंदुइज्म, दैट इज रिलेटेड टू समथिंग एक्सट्रीम नेशनलिज्म, तो ये सारी चीजें वही ना कहीं वहीं से अराइज होके आई है। सो बेसिकली अब इस पार्टी ने एजिटेट करना शुरू किया दैट देयर शुड बी हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ इंग्लिश, गॉट इट, एंड आफ्टर दैट also opposed to the granting of concession to religious and cultural minority। और इन्होंने क्या किया, जो कुछ रिलीजियस और कल्चरल माइनॉरिटी को कुछ स्पेशल ग्रांट्स मिले हुए हैं उसको इन्होंने अपोज करना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं इसी चीज का रिजल्ट है, इफ यू आर एबल टू सी इन 2019, है ना, वी रिमूव्ड आर्टिकल 370, और 370 क्या था, दैट वाज रिलेटेड टू जम्मू कश्मीर। Because this ideology, the party is following the ideology of basically which was opposed the idea of grants to religious and cultural minority. Okay, the party was a consistent advocate of India developing nuclear weapons, especially after China carried out its atomic test in 1964. और इसके अलावा पार्टी क्या थी, एक कंसिस्टेंट मतलब कंटिन्यूसली एडवोकेट कर रही थी किस चीज को, दैट इंडिया शुड आल्सो डेवलप इट्स वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स, एंड व्हेन चाइना वाज एबल टू फॉर्म इट्स न्यूक्लियर वेपन्स, जनरेट इट्स न्यूक्लियर वेपन्स, तो तब से तो कहीं ना कहीं इनकी जो डिमांड थी, ये जिस चीज को लेकर वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अग्रेशन में आ रहे थे, वो और ज्यादा तेज हो गई आफ्टर 1964, क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं चाइना, और चाइना के लोगों ने कुछ चीज बना दी तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं, राइट। और ऐसे ही जब हम लोग बनाएंगे 1974 में, तो फिर पाकिस्तान वाले टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने क्या बोला कि भले ही पाकिस्तान की जनता जो है वो घास फूस की रोटी खाएगी, बट न्यूक्लियर वेपन्स तो हम जरूर बनाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं आपके नेबर्स का आपके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। सो इसकी जो पॉलिटिकल पार्टी है आपकी भारतीय जनसंघ, उसकी आइडियोलॉजी क्या थी कि एटॉमिक टेस्ट के एरिया में भी इंडिया को फॉरवर्ड आना चाहिए। In the 1950s, Jansangh remained on the margins of electoral politics and was able to secure only 3 Lok Sabha seats in 1952 election and 4 seats in 1957 general election to Lok Sabha. लेकिन फिर क्या होता है, 1950s का जो टाइम पीरियड था, that was not good for Jansangh. And why? Because in the election of 1952, they were able to secure only 3 seats. And in 1957, they were able to secure only 4 seats. So in the earlier years, its support came mainly from the urban areas in the Hindi-speaking states like Rajasthan, Madhya Pradesh, Delhi, Uttar Pradesh. अब देखो जब ये लोग ऐसे डिमांड करेंगे कि हिंदी आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए, so now there is a logic that all of the states in which these people will be living, those who are favoring Hindi, so they will be following it, right? They will accept it. But those people suppose in South India, they will not accept it, क्योंकि वहां तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब हिंदी को लेकर कहीं ना कहीं ये हो रहा था कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो, उन्होंने तो तब भी प्रोटेस्ट किया था, राइट। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, तमिलनाडु में तो बहुत लार्ज स्केल पे प्रोटेस्ट हुए थे। सो यही रीजन था कि इस पार्टी को बेसिकली फेवर मिला अर्बन एरिया से, और वो भी कहां से, जहां पर हिंदी स्पीकिंग पीपल रह रहे थे, गॉट इट। सो आफ्टर दैट द Bharatiya Janata Party, the party's leader included Shyama Prasad Mukherjee, Deen Dayal Upadhyay and Balraj Madho. The Bharatiya Janata Party traces its roots to Bharatiya Janasangh, यानी भारतीय जनता पार्टी के रूट्स आपको कहां से मिलते हैं, भारतीय जनसंघ से मिलते हैं। सो ही इज द पर्सन दीन दयाल उपाध्याय, फाउंडर मेंबर ऑफ भारतीय जनसंघ, राइट। सो फुल टाइम आरएसएस वर्कर, आरएसएस मीन्स राष्ट्रीय स्वयं सेवक, okay, worker since 1942
founder member of Bharatiya Jansangh, General Secretary and later President of Bharatiya Jansangh, initiated the concept of integral humanism. इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेटेड जो आप करते हो ना, इंटीग्रल एक समावेशन वाला, ऐसा ह्यूमनिज्म होना चाहिए, उसको इनिशिएट किया था इन्होंने. फाइन. Okay, this we have already discussed in last class when we were able to see that there were some small groups in Congress, factions basically, and just because of that Congress was able to get more, you can say, more strength, and the people were thinking that these factions will be able to break down Congress, but this work as the diversity in Congress, and people were not having any other alternatives because it was better for them to stay in the Congress and to work as a leading party instead of that they are sitting in opposition and they are just criticizing the government only, right? So now till now what we have got that till this position all of the parties, they were not in forefront, only Congress was dominating in each and every place of the country. So how we are having emergence of opposition party, क्योंकि अपोजिशन के बिना देखो जब तक अब रूलिंग पार्टी है, नो डाउट है ना, कांग्रेस वाज वेरी पॉपुलर, बट इवन देन जब तक आपकी पॉलिसीज को कोई अपोज करने वाला नहीं है, स्पेशली इन पॉलिटिक्स, सो व्हाट विल हैपन, इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम्स ओनली. क्यों? क्योंकि आपको क्या लगेगा, एवरीथिंग वट एवर यू आर डूइंग दैट इज एप्रोप्रिएट, and till then there is no one to show you that here it is your mistake, it should be done in that manner instead of that which you have adopted. इसीलिए क्या हुआ, emergence of opposition party. So now we are going to discuss this. So as we have noted above, it's not the India did not have opposition party. It is not that India did not have opposition party during this period. While discussing the results of the election, we have already come across the names of many parties other than Congress. मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री में opposition party थी ही नहीं, है ना. हमने जब रिजल्ट डिक्लेयर किए थे कि इस पार्टी को इतनी वोट्स मिली, अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा भारतीय जनसंघ, है ना, 1952 के इलेक्शन में द पार्टी वाज एबल टू सिक्योर ओनली 3 सीट्स, 1957 इट वाज एबल टू सिक्योर ओनली 4 सीट्स. इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पार्टी ही एक थी हमारे पास. Got it? Because India is having multi-party system, and we have discussed the name of lot of the party. We have discussed Communist Party of India, Marxist, है ना, भारतीय जनसंघ we have discussed, Congress already we are discussing. So a lot of parties were there. Got it? So we have already came across the names of many parties other than Congress. Even then India had a larger number of diverse and vibrant opposition party than many other multi-party democracy. लेकिन इंडिया में क्या है, लार्जर नंबर ऑफ डाइवर्स एंड वाइब्रेंट अपोजिशन पार्टी. हमारे यहाँ लार्जर नंबर पे होती है अपोजिशन पार्टी क्योंकि हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, राइट? अगर आप लोगों को पता हो तो वी आर हैविंग बेसिकली 3 पार्टी सिस्टम्स. फर्स्ट इज दैट इज सिंगल पार्टी सिस्टम और यू कैन से 1 पार्टी सिस्टम. उसका मतलब क्या होता है कि वहां पे और पार्टी का एग्जिस्टेंस हो सकता है बट बेसिकली पावर रिवॉल्व्स अराउंड 1 पार्टी ओनली. फॉर एग्जाम्पल चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी इज देयर जिसका हर एक पार्ट पे कंट्रोल होता है. सेकेंड इज ड्यूअल पार्टी सिस्टम या फिर 2 पार्टी सिस्टम. इसमें क्या होता है, वी आर हैविंग अदर पार्टीज ऑल्सो बट पावर विल बी रिवॉल्विंग अराउंड 2 मेजर पार्टी, राइट? यूएसए इज द एग्जाम्पल एंड ब्रिटेन इज ऑल्सो द एग्जाम्पल. गॉट इट? इन यूएसए यू आर एबल टू सी दैट डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक 2 मेजर पार्टीज आर देयर. Got it? So and third system that is multi-party system that is existing in India. मतलब जहां पे ऐसा नहीं कि एक ही पार्टी रिवॉल्व कर रही है, हालांकि 1 पार्टी डोमिनेंस एरा वी हैव स्टडीड बट वो बड़े डेमोक्रेटिक वे से हो रहा था सब कुछ. Got it? It means हमारे यहाँ ये नहीं कि पावर का जो सेंटर है वो सिर्फ एक ही पार्टी बनकर रहेगी. वी आर हैविंग मल्टी पार्टी सिस्टम. और हमारे यहाँ जो अपोजिशन पार्टी है वो कहीं ना कहीं ज्यादा डाइवर्स होती है, ज्यादा वाइब्रेंट होती है इन कंपैरिजन ऑफ अदर कंट्रीज. Got it? Some of these had come into being even before the first general election of 1952. और कुछ तो इलेक्शन से पहले ही एग्जिस्टेंस में आ गई थी. Some of these parties played an important part in the politics of the country in the 60s and 70s. और कुछ ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कब, हमारी कंट्री की पॉलिटिक्स में इन द टाइम पीरियड ऑफ 1960s and 70s. The roots of almost all the non-Congress party of today can be traced to one or the other of the opposition party of the 1950s. जो
आज आप देख पा रहे हो ना, जितनी भी नॉन कांग्रेस पार्टी है वो सारी कहां से रूटेड है? जितनी हमारी अदर देन कांग्रेस पार्टी थी, जितनी हमारी अपोजिशन पार्टी थी, उनके ही कहीं ना कहीं रूट से हम आज जितनी नॉन कांग्रेस पार्टी देख पा रहे हैं, वो सारी की सारी कहां से अराइज हुई है? उसी टाइम के जो हमारी अपोजिशन पार्टी थी वहीं से उनके रूट्स हैं। गॉट इट? So all these opposition party succeeded in gaining only a token representation in the Lok Sabha and State Assembly during this period. लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही थी? हम इस बात से डिनाई नहीं कर रहे कि हमारी कंट्री में अपोजिशन पार्टी थी ही नहीं, बट व्हाट वाज द थिंग कि ये जो पार्टीज थी, इनके जो लीडर्स थे, उनको सिर्फ टोकन रिप्रेजेंटेशन मिल रहा था, मतलब बहुत कम रिप्रेजेंटेशन मिल रहा था। Yet their presence played a crucial role in maintaining a democratic character of the system. और एज आई टोल्ड यू कि अपोजिशन नहीं होगा तो आपको अपनी कमियां पता ही नहीं चलती हैं, है ना? जब तक आपको कोई जज करने वाला ही ढंग से नहीं हो तो आप क्या सोचोगे? आई एम फाइन, आई एम कंप्लीटली करेक्ट, राइट? सो द सेम थिंग डिड नॉट हैपन, दैट्स व्हाई देयर वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ अपोजिशन पार्टी। और इसीलिए इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले भी किया हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में। These parties offered a sustained and often principled criticism of the policies and practices of the Congress party. इन्होंने जो इंपॉर्टेंट वर्क किया वो क्या था? कांग्रेस की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करने का। और देखो, क्रिटिसाइज करने का भी बेनिफिट होता है, बिकॉज इफ यू वांट टू क्रिटिसाइज समथिंग ना, यू विल हैव टू शो दैट फैक्टर विच फ्रॉम विच पीपल आर अनअवेयर, है ना? मान लिया कोई पॉलिसी आ रही है तो जो आपकी लीडिंग पार्टी होगी, रूलिंग पार्टी होगी, दैट विल ट्राई टू शो इट्स बेनिफिट्स ओनली, इट्स पॉजिटिव एस्पेक्ट ओनली। बट अगर अपोजिशन पार्टी होगी तो अपोजिशन पार्टी क्या करेगी? वो फैक्टर आपको शो करेगी जो कहीं ना कहीं उसके लूज पॉइंट्स थे। ओके, सो दिस कैप द रूलिंग पार्टी अंडर चेक एंड ऑफन चेंज द बैलेंस ऑफ पावर विद इन द कांग्रेस। और इसका बेनिफिट क्या हुआ? इसका बेनिफिट यही हुआ कि इसकी वजह से जो हमारी रूलिंग पार्टी थी उसके ऊपर चेक लग गई, कहीं ना कहीं कंट्रोल एस्टैब्लिश हो गया। एंड ऑफन चेंज द बैलेंस ऑफ पावर विद द कांग्रेस, और कहीं ना कहीं एक जो पावर का बैलेंस था ना वो हो गया। ऐसा नहीं हुआ कि एक पार्टी थी तो हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश हो गई, दैट वाज नॉट एबल टू टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अपोजिशन पार्टी, राइट? सो बाय कीपिंग डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स अलाइव, these parties prevented the resentment with the system from turning anti-democratic. This party also groomed the leaders who were to play a crucial role in shaping our country. इसके अलावा क्या किया? हमारी इस जो एंटी कांग्रेस पार्टी थी या फिर जो हमारी अपोजिशन पार्टी थी, उन्होंने क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया? उन्होंने प्रिवेंट कर दिया हमारी गवर्नमेंट को, किससे? कि वो कोई टर्न ना हो जाए नॉन डेमोक्रेटिक, एंटी डेमोक्रेटिक, उनके सेंटिमेंट्स ना नहीं उसमें एंटी डेमोक्रेटिक वो ना बन जाए। इसलिए इसने इस चीज को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करके रखा। सो वी कैन से इन द प्रोटेक्शन ऑफ द डेमोक्रेसी द अपोजिशन पार्टी ऑफ इंडिया दे हैव प्लेड अ वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट रोल। गॉट इट? सो दीज पार्टीज ऑल्सो ग्रूम्ड द लीडर्स who were to play a crucial role in the shaping of our country, and these leaders are there who have shaped our country. Now look at this picture. What is the picture showing to you? What is shown to you? That here are some leaders sitting on the tree and some people are playing, you can say, tug of war. It's a type of game. It's a type of play, you can say. It's the type of play, right? You must have played it. So basically tug of war is a cartoonist impression on the relative strength of the opposition and the government. ये क्या है? कहीं ना कहीं ये शो करता है, ये कार्टून, कि हमारी उस टाइम की अपोजिशन और गवर्नमेंट की क्या पोजीशन थी, राइट? तो अब देखो ये कैसे शो कर रहा है? सिटिंग ऑन द ट्री आर नेहरू एंड हिज कैबिनेट। लुक एट द पिक्चर। ये क्या शो कर रहा है? कि जो पेड़ पर बैठे हैं दे आर नेहरू एंड द लीडर्स ऑफ द कैबिनेट, मतलब जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे एट दैट टाइम इन द कांग्रेस पार्टी, वो लोग हैं दोज हु आर सिटिंग इन द ट्री एंड ट्राइंग टू टॉपल द ट्रीज आर अपोजिशन लीडर्स। और जो इस देखो ये वाले जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस आपकी रोप को पुल कर रहे हैं, ये वाले लोग कौन है? दे आर दी अपोजिशन लीडर्स, राइट? जिसमें आप किसके नाम ले सकते हो? ए के गोपालन, आचार्य कृपलानी,
NC Chatterjee, श्रीकंठम नायर एंड सरदार हुकुम सिंह. दीज आर द पीपल. और ये लोग देखो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राइंग टू टॉपल द ट्री. ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उस ट्री को कहीं ना कहीं गिराने की कोशिश कर रहे हैं जिसके ऊपर कांग्रेस के लीडर्स बैठे हुए. It means what is the picture showing to you? This picture is showing to you that Congress, you can see that they are sitting with a lot of comfortability. There is no any issue, there is no any problem, right? They are laughing only. And these people, they are putting their all of the efforts, but even then they are not able to do anything with this tree. Right? So what we are able to see, we are able to understand the picture of that time period of India, that Congress was in how much powerful position, है ना? Opposition party were existing in our country, but even then they were not in that much position that they can pull down the Congress. But even then we can't deny from the fact that yes, we were having opposition party, and the role of those opposition party was also very important. Right? Because if these opposition parties were not there, so maybe it could happen that India could have changed to non-democratic party also, non-democratic country also, as we have seen the examples of lot of the country. देखो हमने और पाकिस्तान ने साथ साथ शुरुआत की, है ना? We were also democratic. Pakistan also said that it is democratic, but वहां पे कहीं ना कहीं क्या हुआ, मिलिट्री रूल एस्टैब्लिश हो गया. If we are able to sustain with our democracy, तो कहीं ना कहीं आप कंसीडर कर सकते हो it is the contribution of opposition parties also. क्योंकि जिस डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन पार्टी वर्क नहीं करती, वहां पे इसका मतलब डेमोक्रेसी ही सक्सेसफुल नहीं है. क्योंकि पॉलिटिक्स का मतलब ही क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑर्डिनेशन, है ना? जब आपके कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होंगे, बिकॉज द पार्टी विच इज अगेंस्ट यू दैट विल बी फॉलोइंग डिफरेंट आइडियोलॉजीज फ्रॉम यू, है ना? तो वहां पे होंगे आपके कॉन्फ्लिक्ट्स. लेकिन कोऑर्डिनेशन कैसे एस्टैब्लिश होगा, यू विल ट्राई टू मेक अ बैलेंस, है ना? एंड दैट बैलेंस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, and that we have seen exactly in the position of India, and we are able to sustain as a democratic country till now, or you can say it is the major contribution in this particular situation of India is of opposition parties as well. Got it? So hope till now everything is clear to all of you, and you are able to understand emergence of opposition party and their role also, right? So in next video we will be able to sum up all of the chapter. Hope till now everything is completely clear to all of you, but now if you are having any kind of doubt, query, question, any word which you are not able to get, you can write all of your doubts in your comment section, and next part, or you can say summarize of all of the chapter we will do in next video. Till then, keep learning, stay connected. Thank you. Thanks a lot.